ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਿਕ ਏਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੜਨ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੇਂजेस ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਲੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋਰਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਵਿਚ ਆਰ ਬਿਫੋਰ ਦ ਲਾਂਚਿੰਗ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਨਟੂ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਊ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਰਕ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ। So the regulatory framework, compliance requirement, efficacy, safety, and the marketing of cosmetic product are considered the most important factor for the growth of cosmetic industry. अगर आप सिर्फ cosmetic industry दी गल करिए, we are not talking about the pharmaceutical industry. So cosmetic industry deals with the cosmetic product. So ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਆਬਜ਼ਰਵ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲਾਇੰਸ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਡਰਗ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਐਫੀਕੇਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗਾ, ਸੇਫ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾਈਲ ਇਟਸ ਯੂਜ਼, ठीक है, और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस तरीके ना करनी। सो ये सारे फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द ग्रोथ ऑफ द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। देयरफॉर वन शुड रेगुलेट द रिक्वायरमेंट। सो हर एक नूं की चेक करना पैना, पहला रेगुलेट की करना पैना की रिक्वायरमेंट्स हैगियां, क्वालिटी की हैगी, एफिकेसी, सेफ्टी, मार्केटिंग प्रोडक्ट दी, ताकि प्रोडक्ट नूं सेफली अप्लाई किया जा सके। नाउ द ऑब्जेक्टिव, सो अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज हैगियां ओवर द वर्ल्ड जो कि रेगुलेशंस ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਆ, ठीक है, जापान जिहड़ा हैगा एक स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उन्होंने अपना ही इंडिविजुअलाइज फ्रेमवर्क डिजाइन किया हो गया। कॉस्मेटिक्स आर नॉट सो मच स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड इन कंट्रीज, जिदा कि अगर आप गल करिए ये कुछ कंट्रीज हैगियां जो कि एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉलो करदियां पे, लेकिन इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन जिहड़ियां हैगियां आ वो अप्लाई नहीं करदियां, रूल्स अप्लाई नहीं करते, ठीक है, ओवर दीज कंट्रीज, ठीक है। So we are the nationals of India. That's why we should know about our country regulation and their effort to control such a grooming market of the cosmetic. Grooming market मतलब कि बहुत ज़्यादा advance हुंदी पई है। आजकल मार्केट दे विच बहुत सारे cosmeceutical product जेडे available हैगे आ, ठीक है, लेकिन वो किन्ने क safe हैगे आ, किन्ने क effective हैगे आ, ठीक है, उन्हां नूं use करन दे नाल किन्ने positive response आणगे। So ये सारे आपां स्टडी करांगे अंडर cosmetic रेगुलेशन, ठीक है। सो कॉस्मेटिक ਨੂੰ यूज ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਤੇ ਕਾਸਮੈਸੂਟਿਕਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰਮ ਦ ਟਾਪ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੰਪੋਰਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ। स्टैंडर्ड ते ग्रांट्स मतलब कि ਅਸੀਂ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स ਨੂੰ फॉलो करना है, किन्नी साडे को ग्रांट अवेलेबल हैगी है, प्रोडक्ट की MRP किन्नी होएगी, एफिकेसी की हैगी है, उन्हें अप्लाई किस तरीके ना करना है, ओदी सेफ्टी ते ओदे टॉक्सिसिटी पैरामीटर्स केड़े-केड़े हैगे आ, और ड्रग दी कंपोजिशन की हैगी। सो इन दिस सर्कल बेसिकली जो आप 6 ਦੇ 6 पैरामीटर्स कीते, इट डजंट मीन कि सानू पहला किस चीज बारे पता होना चाहिए। अल्टीमेटली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नु यूज करन तो पहला सानू इना सारी चीजां दी नॉलेज होनी चाहिदी हैगी, ओदी कंपोजिशन बारे, ओदे स्टैंडर्ड्स बारे, ग्रांट बारे, प्रोडक्ट दी MRP, ओदी एफिकेसी, ओदा यूज, ओदी टॉक्सिसिटी प्रोफाइल, ठीक है, केड़े मैन्युफैक्चरर और केड़े इंपोर्टर दे थ्रू उनु मार्केट दे विच लियाया जाऊगा। सो ये सारियां चीजां दी जेड़ी हैगी सानू नॉलेज होनी चाहिए है, ठीक है। सो डेफिनेशन एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, कॉस्मेटिक मीन्स एनी आर्टिकल, ठीक है, कोई भी आर्टिकल जिन्हों असी रब करते हैं स्किन के उत्ते, ਆਪਾਂ पोर करते पे हैं, स्प्रिंकल करते पे हैं, स्प्रे करते पे हैं, या फिर इंट्रोड्यूस करते पे हैं, या फिर डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी ते या फिर किसी होर पार्ट ते अप्लाई करते पे हैं, कादे लई
ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਬਿਊਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਟਰੈਕਟਿਵਨੈਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਜ਼ ਆਰ cosmetics. Now firstly misbranded cosmetic, misbranded ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ this is related to brand, ठीक है। सो ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਮਿਸ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਆ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਆਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਈਟ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਵੀ ਉਹ ਚ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਲਰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ नहीं किया गया, ठीक है। इफ इट इज नॉट लेबल इन अ प्रिस्क्राइब मैनर, अगर उसकी लेबलिंग प्रॉपर नहीं हुई है, ठीक है, और उस लेबल दे विच या फिर कंटेनर दे विच या फिर कॉस्मेटिक दे नाल कोई भी चीज असी जेडी देन जा रहे हैं उहदे विच कुछ इहो जी स्टेटमेंट दित्ती गई है जो कि गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती पई है, ठीक है। किसी भी तरह कॉस्मेटिक तो रिलेटेड कोई भी गलत इंफॉर्मेशन जेडी जाती पई है, सो उस केस दे विच आपां प्रोडक्ट नू मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक कवांगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द स्प्यूरियस कॉस्मेटिक। स्प्यूरियस कॉस्मेटिक केड़े हुंदे आ जो कि हुंदा इंपोर्टेड। हुण आपां बेसिकली ये कित्तों रिलेटेड हैगा आ, इट इज रिलेटेड टू इंपोर्ट, ठीक है। सो इंपोर्टेड तो रिलेट किदां होएगा कि जेड़े भी साडे कोल कॉस्मेटिक्स हैगे आ वो किसी होर कॉस्मेटिक दा नाम दे के, फॉर एग्जांपल हुण मान लो साडे कोल बीबी क्रीम आंदी, सीसी क्रीम आंदी आ, ठीक है। सो बीबी क्रीम जिहड़ी हैगी आ आपां प्रोडक्ट बना लिया, क्रीम प्रिपेयर कर ली, लेकिन आपां नाम उहनूं बीबी क्रीम दे दित्ता, लेकिन जो एक्चुअल बीबी क्रीम साडे कोल अवेलेबल हैगी आ मार्केट दे विच, उस बीबी क्रीम दी एक्टिविटी नालों साडी जिहड़ी क्रीम असीं बनाई आ ओहदी एक्टिविटी बहुत ज्यादा डिफरेंट हैगी। सो किसी होर दा नाम दे अंडर असीं प्रोडक्ट नूं इंपोर्ट कर दिता, so that is spurious cosmetic, ठीक है। if the label of the container bears the name of individual or a company purporting to be the manufacturer of the cosmetic, which individual or company is fictitious or does not exist, again label किसी होर दा लेकिन प्रोडक्शन किसी होर दी। फॉर एग्जांपल अगर रनबैक्सी बहुत ज्यादा फेमस हैगी आ, आपां की करांगे रनबैक्सी दे नाम ते प्रोडक्ट नूं इंपोर्ट कर दांगे, लेकिन बनाया किसी होर लोकल कंपनी ने सीगा, ठीक है। सो if it purports to be the product of a manufacturer of whom it is not truly a product, अगर कोई claim करता है, ठीक है, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ कि रनबैक्सी ने ਇਹਨੂੰ प्रोडक्ट ਕੀਤਾ, लेकिन एक्चुअली रनबैक्सी ਦਾ ਉਹ प्रोडक्ट है ही नहीं, उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ स्प्यूरियस कॉस्मेटिक कंसीडर ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ठीक है। सो मिस ब्रांडेड ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ कि गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ਕੀਤੀ गई है, ठीक है, जो प्रिस्क्राइब ही नहीं ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ हट के प्रिस्क्रिप्शन जो ਸਾਡੇ ਕੋਲ प्रिपरेशन तो पहला जो आपां चीज लिस्ट दे विच इंक्लूड कीतियां सीगियां उस तरह का कुछ भी नहीं हैगा, बट उस तो अलग ही कुछ जिहड़ा हैगा उहदे विच प्रेजेंट हैगा आ, ठीक है। सो दूसरा हो गया साडे कोल स्प्यूरियस कॉस्मेटिक। स्प्यूरियस कॉस्मेटिक बेसिकली कि असीं इहनूं फॉल्स कॉस्मेटिक भी कह सकते हैं, ठीक है। बेसिकली कि जो चीज एक्चुअली एग्जिस्ट भी नहीं करती पई है, लेकिन उहदा असीं नाम दे के किसी होर दा नाम दे के, ठीक है, नाजायज जिन्होंने असीं एक तरीके नाल कह सकते हैं, ठीक है, वो सारे प्रोडक्ट नूं असीं स्प्यूरियस कॉस्मेटिक कहने हैं। फिर आगे साडे कोल अडल्ट्रेटेड कॉस्मेटिक। अडल्ट्रेटेड कॉस्मेटिक किहड़े होणगे जिहदे विच अडल्ट्रेशन हुंदी है। कोगनोसी विच असीं ऑलरेडी पढ़िया होया। अडल्ट्रेशन मतलब कि एक्चुअल प्रोडक्ट दे विच कुछ ना कुछ एज अ इंप्योरिटी आपां ऐड कर दित्ते, वो एज सच इंप्योरिटी नहीं हुंदी, लेकिन आपां प्रोडक्ट दी क्वांटिटी नूं इंक्रीज करन दे लई ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਡਲਟਰੇਟਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਇਨ ਹੋਲ ਔਰ ਇਨ ਅ ਪਾਰਟ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਥੀ ਆ ਪਿਊਟਰਿਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ डीकंपोज सब्सटेंस हैगा। फिल्थी मतलब कि जो खराब हो चुका है, प्यूट्रिड मतलब कि जो स्मेल बहुत मारदा पिया है, या फिर कोई डीकंपोज कोई खराब प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। सो दैट इज adulterated cosmetic।
या फिर जिस टाइम तो प्रिपेयर किया गया ਉਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ ਅੰਡਰ ਇਨਸੈਨਿਟਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਨੀਟਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ मतलब कि प्रोडक्ट खराब हो गया ठीक है जो कि हुण इंजरियस बन चुकिया हेल्थ के लिए ठीक है हेल्थ के लिए नुकसानदायक हैगा या फिर ਉਹਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੋਈ ਡੈਲੀਟਰੀਅਸ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜੋ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ नुकसानदायक होएगा वो सारे कॉस्मेटिक नु अडल्ट्रेटेड कॉस्मेटिक कहते हैं ठीक है फिर होर केड़े कॉस्मेटिक अडल्ट्रेटेड हुंदे आ if it bears or contain for the purposes of coloring only a color other than one which is prescribed ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੌਸਮੈਟਿਕ ਹੈਗਾ that is not colorless ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਸਮੈਟਿਕ colorless ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਸਾਰੀ ਕਰੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਬੇਬੀ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਈਟ ਟਿੰਟ ਦੇਣਾ ਸੀ ਬੇਬੀ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਲਾਈਟ ਪਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਲਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਨੋਲਫਥਲੀਨ ਹੈਗਾ ਆ ਮਿਥਾਈਲ ਔਰੇਂਜ ਹੈਗਾ ਡਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਈਜ਼ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਫ ਸੇਮ ਕਲਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਈਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਲਈ ਫਿਨੋਲਫਥਲੀਨ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਲਈ ਫਿਨੋਲਫਥਲੀਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਲਫਥਲੀਨ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਨੋਲਫਥਲੀਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਡਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਨੂੰ ਅਡਲਟਰੇਟਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਕਹਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕੋਈ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਟੌਕਸਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੋ ਕਿ ਅਗੇਨ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ और ओवरऑल ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਡਲਟਰੇਟਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸੀਡੀ ਐਸਈਓ ਸੀਡੀ ਐਸਈਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਜਨਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸੋ ਅੰਡਰ ਦ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਡਰਗ ਇਨ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ 1940 ठीक है रूल्स के अंडर बनाए गए थे कि एक ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾइसेंसिंग बाय द स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट while the import of cosmetic is regulated under a system of registration by the central licensing authority appointed by the सेंट्रल गवर्नमेंट सो अल्टीमेटली जो साडे को लाइसेंसिंग बॉडी है उन्होंने किने ऑथराइज किया है अपॉइंट किया दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है सो बेसिकली सीडीएसओ की हो गया सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है सो ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया का ऑफिस हैगा आ ठीक है जिहदे अंडर एक बॉडी बनती है दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जिहदा काम की हैगा सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस इशू कराना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कराना कॉस्मेटिक्स से इंपोर्ट नू जिहड़ा हैगा रेगुलेट करना चेक करना और असी केड़ी प्रोविजन दे अंडर चेक करना है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 ठीक है जिहदे अंडर रूल बने आ ओदे ही अंडर आपां ये चीज चेक करनी हुंदी आ कि साडे को जिहड़े भी प्रोविजनस हैगे आ सेम एक्ट नू फॉलो कर रहे आ कि नहीं करते पे ठीक है नेक्स्ट इज ऑर्गेनोग्राम की हुंदा जिद्दां कि कॉस्मेटिक्स दी डिवीजन सब तो पहला एक ड्रग कंट्रोलर जनरल हुंदा जॉइंट ड्रग कंट्रोलर हुंदा डिप्टी ड्रग कंट्रोलर हुंदा इस तरीके नाल कि केदे अंडर केड़ी बॉडी ने काम करना है ठीक है दैट इज ऑर्गेनोग्राम फंक्शनैलिटीज की हुंदियां बेसिकली इन्हां दियां ठीक है स्क्रूनिटी ऑफ एप्लीकेशन स्क्रूनिटी मतलब कि फाइंड आउट करना चेक करना ठीक है सॉर्ट आउट करना बेसिकली जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट तो रिलेटेड कोई भी साडे कोल एप्लीकेशंस आईयां होईयां उन्हां नूं असीं फाइंड करदे पए आ और आपां ये चेक करदे पए आ कि इन्हां दा इंपोर्ट कंट्री दे विच किस तरीके नाल होएगा और ये सारा इंपोर्ट दे टाइम ते वो एप्लीकेशन दे विच जेहड़ी उन्हां डिटेल मेंशन कीती है दैट इज एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और नॉट ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट दे अकॉर्डिंगली ओदी रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है दूसरा स्क्रूनिटी ऑफ वेरियस एप्लीकेशन फॉर नॉ क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इंपोर्ट अगेन साडे कोल बहुत सारी एप्लीकेशंस आईयां हैं ओदे विच आपां ये क्लैरिफाई करना है कि ਕਿਹੜੀਆਂ प्रोडक्ट इंपोर्ट करनगियां किन्हां ने रजिस्ट्रेशन ਲਈ अप्लाई किया है सो
इन्हां बॉडीज दे कोल अल्टीमेटली सारी दी सारी अथॉरिटीज हैगियां, लेकिन इन्हां नूं डिफरेंशिएट करन दा काम जिहड़ा हैगा आ CDSEO बॉडी दा हुंदा है। ठीक है, ड्राफ्ट प्रिपेयर करने, RTI reply, court cases, VIP references, so all these related question to cosmetic, they are the again function of CDSEO। गवर्नमेंट ਨੂੰ रिप्लाई करना, ठीक है, जिस टाइम पे भी जरूरत पैंदी है। then public inquiries ਨੂੰ हैंडल करना, cosmetic import ਦੀ registration ਤੋਂ related कोई भी inquiry हैगी है cosmetic ਤੋਂ related, that all be handled by this body। ठीक है, फिर पब्लिक NGOs कंज्यूमर फोरम्स ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ਜਿਹੜੇ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ਤੋਂ रिलेटेड ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ठीक है, और ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ਦੀ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, नाउ रेगुलेशन गाइडलाइंस एंड कंप्लायंस। नाउ द इंपोर्ट ऑफ कॉस्मेटिक, पहला था कॉस्मेटिक का इंपोर्ट क्यों कराया जाता है, पर्पस की है। The government of India has issued a gazette notification, ठीक है, so and so date ਨੂੰ, and amending the drug and cosmetic rule 1945, providing for registration of import of cosmetics into the country। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गजट ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਗ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਰੂਲਸ ਆ, ਐਕਟ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, रूल्स 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਚੇਂजेस ਕੀਤੀਆਂ। ठीक है, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂजेस ਹੈਗੀਆਂ, that is related to the registration of import of cosmetic। ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂजेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਡਰਗ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਰੂਲ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 19 ਮਈ 2010। The above provision was to come into effect from the 1st April 2011। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਈਅਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਊਗਾ। But in the view of the various possible difficulties apprehended by the stakeholder, its implementation has been deferred till the 31st March 2013। ठीक है, लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ amendments ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ठीक है, ਉਹ amendments ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ stakeholders ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ difficulties ਆਈਆਂ। ठीक है, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ difficulties ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, stay order ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ implementation ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2013 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ठीक है, now with the view of implementing the provision of the aforesaid notification and facilitate the registration process for import of cosmetic, the following guideline clarification including general requirement for grant of registration certificate are being provided hereunder। so ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ implementation ਹੋਈ provision ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ notification ਉਹਨੇ mention ਕੀਤਾ ਹੈ, ठीक है, and जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए इंपोर्ट ऑफ कॉस्मेटिक के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉलो करना सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो भी चेंजेस है वो नीचे मेंशन कीतियां हुई। ठीक है, तो जो भी गाइडलाइन क्लैरिफिकेशन सन दित्तियां हुई आ इंक्लूडिंग द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे आर मेंशन। नाउ these guidelines are not exhaustive ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪਾ ਕੇ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ ਫॉर द ਇੰਪੋਰਟ ਆਫ ਕਾਸਮੈਟਿਕ, ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ 42, ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਚਲਾਨ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ, ਸ਼ਡਿਊਲ D3, ओरिजिनल कॉपी ऑफ द लेबल, फ्री सेल सर्टिफिकेट, ठीक है, मार्केटिंग ऑथराइजेशन लेटर, लाइसेंस, product specification, testing protocol, list of countries where market authorization or import permission or registration was granted, pack insert and soft copies of the information about the brands, products and the manufacturer। who can apply for the registration of import of cosmetic, who can be the importer, कौन importer हो सकता है, कौन साडी कंट्री, अगर इंडिया की गल करिए तो फॉरेन नेशनल्स दे विचों कौन साडी कंट्री दे विच इंपोर्ट कर सकता, द मैन्युफैक्चरर हिमसेल्फ हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया, जेड़ा भी मैन्युफैक्चरर हैगा ओदा रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया दे विच होना चाहिदा है। दूसरा ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरर, एजेंट ने मैन्युफैक्चरर ने किसी एजेंट को ऑथराइज किया है। तो सब्सिडायरी ऑफ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर की जगह कोई होर पर्सन सब्सिडाइड कर चुकिया है प्रोडक्ट, मतलब फॉर्म नूं चलाउंदा पिया है, वो भी साडे को रजिस्ट्रेशन ने अप्लाई कर सकता है। या फिर कोई भी इंपोर्टर जो ऑलरेडी थ्रू आउट द वर्ल्ड रजिस्टर हैगा आ वो साडे को इंपोर्ट के लिए अप्लाई
कर सकता है, ठीक है। सो रेगुलेटरी प्रोविजन जेहड़ियां सेल ते कॉस्मेटिक ते इंपोर्ट तो रिलेटेड होंदियां आ, those are central government by notification in the official gazette in this behalf give a notice no person shall import or sell। ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਸ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੈਗਾ, ਸਪਿਊਰੀਅਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਜੋ ਕਿ ਟਾਇਲਟ ਸੋਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਜ਼ਾਕਲੋਰੋਫੀਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ ਸੇਲ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਡ ਹੈਗਾ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਲਰਿੰਗ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰਕਰੀ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਵਾਲੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਅਲਾਉਡ नहीं हैगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक रेगुलेटरी प्रोविजन रिलेटेड टू सब तो पहला लाइसेंस कितना ऑब्टेन करना। नाउ द प्रोसीजर ऑफ द फॉलोड procedure to be followed in order to manufacture cosmetics in India has been laid down under Drug and Cosmetic Act 91 Schedule M2 classifies cosmetic into 11 broad categories। उन्हें क्या की obtain कितना करना लाइसेंस की जेडे उन्हें cosmetics इंडिया दे सीगे आ schedule M2 उन्हें की कितना 11 कैटेगरीज दे विच cosmetic नु डिवाइड कर दिता, ठीक है। नाउ ਕਿਹੜੀਆਂ 11 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਾਊਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਰੀਮ, ਲੋਸ਼ਨ, ਇਮਲਸ਼ਨ, ਕਲੀਨਸਿੰਗ ਮਿਲਕ ਵਗੈਰਾ, ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼, ਲਿਪਸਟਿਕ, ਡਿਪੈਲਟਰੀ, preparation used for eyes, aerosol, hair dye, tooth powder। So these are the 11 different preparation and all these are termed as cosmetics। Now to manufacture any of these products a license has to be obtained from a licensing authority appointed by the state government। state government ने किसी ਨੂੰ अपॉइंट ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਆ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਫਾਰਮ 31 ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀ 2500 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ₹1000। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ क्वालिफाइड टेक्निकल स्टाफ करूगा, एक कंपीटेंट ते क्वालिफाइड टेक्निकल स्टाफ करूगा, और एटलीस्ट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿਚ ਮਸਟ ਬੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਪਰਸਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਐਟਲੀਸਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਪੀਸੀਆਈ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗਾ ਆ अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਜੋ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੋ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਆਪਣੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਸਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਕਾਦੀ प्रीमिसेस दी जिथे ऑपरेशन किया जाएगा। इंस्पैक्टर जेडे होंगे उन्होंने भी अपॉइंट किया जाता अंडर द एक्ट, और उन्होंने एक डिटेल्ड रिपोर्ट जी हैगी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सबमिट करानी पैनी है, ठीक है, और दसना पैना कि वो लाइसेंस ग्रांट करन या फिर ना करन, ठीक है। फिर आगे कंडीशंस ऑफ लाइसेंस, मैन्युफैक्चर जेड़ा हैगा आ वो प्रोवाइड भी कर सकता, मेनटेन कर सकता प्रीमिसेस नू, इक्विपमेंट नू, स्टाफ नू एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस। उन्हें क्या कि जिस टाइम पे तुसी लाइसेंस लिए ग्रांट किया, ठीक है, उस टाइम पे जो भी तुसी स्टाफ शो किया, जो भी तुसी इक्विपमेंट शो किए, जो भी तुसी प्रीमिसेस दसिया, इहदे विच ही मैन्युफैक्चरिंग इसी स्टाफ दे नाल और इसी इक्विपमेंट दे नाल मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूड रहेगी, ठीक है। दूसरा मैन्युफैक्चरर जिहड़ा हैगा उन्होंने हर एक मतलब टेस्ट ईच बैच ऑफ रा मटीरियल दे हर एक बैच नूं टेस्ट करना यूज करन तो पहला। मैन्युफैक्चरर कॉस्मेटिक दी मैन्युफैक्चरिंग दे विच जिस टाइम पे आपां यूज करना उहदे यूज करन तो पहला सानू हर एक बैच नूं टेस्ट करना पएगा, ठीक है। वो हर एक बैच फिनिश्ड कॉस्मेटिक जिस टाइम पे हर एक बैच का बैच कंप्लीट हो गया, उस पर्टिकुलर बैच ऑफ रॉ मटीरियल तो जो असीं एक बैच फाइनल प्रोडक्ट बना लिया उन्होंने भी चेक करना, ठीक है। रिकॉर्ड्स रॉ मटीरियल दे मेनटेन करके रखने, हर एक बैच दी मैन्युफैक्चरिंग दा कॉस्मेटिक का टेस्टिंग का जो रिकॉर्ड है अगेन मैन्युफैक्चरर नूं मेनटेन करके रखना पैना। नाउ फैक्ट्री प्रीमिसेस और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स की रिक्वायरमेंट केदे अकॉर्डिंगली है, शेड्यूल M2 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, ठीक है, शेड्यूल M2।
रिक्वायरमेंट्स की होंगी लोकेशन एंड सराउंडिंग बिल्डिंग्स, वाटर सप्लाई, डिस्पोजल ऑफ वाटर, मेडिकल फैसिलिटीज, वर्किंग बेंचेस। ठीक है। नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਊਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਊਡਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੇਸ ਪੈਕ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਰਫ ਪਾਊਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਕਅਪ ਪਾਊਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਾਊਡਰ ਮਿਕਸਰ। ठीक है। हुण इहदे लई साडे कोल प्लांट ते इक्विपमेंट किहड़े-किहड़े चाहिए, किहड़े-किहड़े इक्विपमेंट वो भी इन्हां ने दस्से होए आ। पाउडर मिक्सचर चाहिदा है, डस्ट कलैक्टर चाहिदा, परफ्यूम कलर ब्लेंडर चाहिदा आ, बॉल मिल चाहिदी या फिर कोई पर्टिकुलर ग्राइंडर चाहिदा या, फिलिंग मशीन चाहिदी है, मेजरिंग डिवाइसेस चाहिए आ, स्टोरेज टैंक चाहिए आ, और तकरीबन 15 स्क्वायर मीटर्स का एरिया जिहड़ा हैगा दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पाउडर्स। सिमिलरली क्रीम, लोशन, शैम्पू, हेयर ऑयल्स ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਐਜੀਟੇਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਮਿਕਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਹੀਟਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੈਟਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਿੰਗ ਸੀਲਿੰਗ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਮੇਜਰਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ 25 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਰਿਕਮੈਂਡੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਤੇ ਨੇਲ ਲਿਕਵਿਡ ਦੇ ਲਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਮਿਕਸਚਰ, स्टोरेज टैंक, फिलिंग सीलिंग मशीन, वेइंग एंड मेजरिंग डिवाइस। प्रीमिसेस दे ਲਈ ठीक है, प्रीमिसेस दे विच इंडस्ट्रियल एरिया चाहिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेल पॉलिश। ठीक है। इट शैल बी सेपरेट फ्रॉम अदर कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग एरिया, बाकी सारे कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग एरिया तो ये अलग होना चाहिए आ। जिहड़े इहदे विच फ्लोर्स, वॉल्स ते डोर्स हुंदियां दैट मस्ट बी प्रूफ। स्टोरेज जिहड़ी हुंदी, ऑल एक्सप्लोसिव सॉल्वेंट एंड इंग्रेडिएंट शैल बी स्टोर्ड इन मैटल कपबोर्ड्स। जिन्ने भी एक्सप्लोसिव सॉल्वेंट्स हैगे, इंग्रेडिएंट्स हैगे आ, उन्हां नूं कार्डबोर्ड वाले कपबोर्ड्स दे विच स्टोर करन दी बजाय सानूं मैटल कपबोर्ड्स दे विच स्टोर करने चाहिए। ठीक है। मैन्युफैक्चर के लिए सानू की चाहिए कि सब तो पहला तो मैन्युफैक्चरर जिहड़ा हैगा वर्कर वो शूज पहन के रखे। ठीक है। लिपस्टिक्स के लिए वर्टिकल मिक्सचर, मिक्सिंग वैसल, ट्रिपल रोलर मिल, वेइंग एंड मेजरिंग डिवाइसेस, 15 स्क्वायर मीटर का एरिया। सिमिलरली हेयर डाइज के लिए स्टेनलेस टैंक चाहिए, मिक्सचर चाहिए, देन फिलिंग एंड सीलिंग मशीन चाहिए है, ग्लव, मास्क। ठीक है। कुछ पाउडर दे लिए, एरोसोल दे लिए, कुछ पेस्ट दे लिए। सो ऑल द रिक्वायरमेंट, आईब्रोज, आई लैशेस, आई लाइनर, अल्कोहलिक फ्रेग्रेंस। ठीक है। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट बेसिकली of the plant and the equipment। plant जिथे मैन्युफैक्चरिंग होनी है, पर्टिकुलर कैटेगरी जिहड़ी आपां 11 कैटेगरीज कॉस्मेटिक दी कीतियां, सब दी अलग रिक्वायरमेंट्स हैगियां आ, और मैन्युफैक्चरिंग दे लई जो इक्विपमेंट्स हैगे आ दैट इज अगेन डिफरेंट। ठीक है। Next, the requirement pertaining to labeling of product। Product की labeling तो किहड़ियां-किहड़ियां साडे कोल requirements जिहड़ियां हैगियां वो आपा belong करते हैं। सब तो पहला name of product along with the manufacturing address must be mentioned on both inner and outer label। सब तो पहला की उन्हें क्या आ कि जिहड़ा साडे कोल प्रोडक्ट हैगा आ उहदे विच मैन्युफैक्चर दा एड्रैस मेंशन होना चाहिए, इनर लेबल ते भी, बाहर वाले लेबल पे। अगर कंटेनर बहुत सारा बहुत छोटा हैगा साडे कोल तो जिहड़ा प्रिंसीपल प्लेस हैगा मैन्युफैक्चरिंग दा पहला वो दसना चाहिए। फॉर एग्जांपल पंजाब च मैन्युफैक्चरिंग होई आ तो पंजाब दे विच किहड़ी डिस्ट्रिक्ट दे विच, एक वो दूसरा पिन कोड एरिया दा इट मस्ट बी मेंशन, ये इनफ हैगा आ। आउटर लेबल दे विच पूरे दे पूरे इंग्रेडिएंट्स जिहड़े हैगे क्लीयरली मेंशन होने चाहिए आ। दूसरा इनर लेबल दे विच किस तरीके नाल उहनूं यूज करना, वार्निंग यूज करन तो पहला की सानू प्रिकॉशनस लैनियां चाहिदियां आ। सो ये सारा सानू चेक करना पैना। ठीक है। उस तो अलावा कोई भी इंग्रेडिएंट अगर कोई हैजार्डियस हैगा, नुकसानदायक हैगा या नेचर दे लई सानू उहदे नाम मेंशन करने पैने। ठीक है। डिस्टिंक्टिव बैच नंबर केड़े, जिदा कि बैच नंबर बी दे सामने बी लगा के सानू बैच नंबर दसना पैना, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर देना पैना। ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर अगे एम लगना, बैच नंबर दे मोरे बी लगना है। ठीक है। Quality standards की होंदा, quality standard in case of the aforementioned categories of product must confirm the Indian standard laid down and revised by the Bureau of Standard। ठीक है। सो क्वालिटी स्टैंडर्ड मतलब कि जिन्नियां भी कैटेगरीज हैगियां प्रोडक्ट दियां वो जो भी स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट हैगी आ पहला उन्हां नूं रिक्वायरमेंट नूं पूरी करना पैना, और रिक्वायरमेंट किहदे अकॉर्डिंग दी आ दैट वर रिवाइज्ड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। नाउ मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड दे विच शेड्यूल यू हैगा दैट इज रिप्रेजेंट द मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। उहदे विच साडे कोल किहड़े-किहड़े पार्टिकुलर्स हैगे आ वो विजिबल होने चाहिए। सब तो पहला सीरियल नंबर की हैगा आ,
दूसरा प्रोडक्ट का नाम की हैगा, बैच साइज कितना है, बैच नंबर कितना हैगा, सारे दे सारे इंग्रेडिएंट्स का नाम, उन्हां दी क्वांटिटी कितनी कितनी यूज की गई है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुंदी पई है, पैकेजिंग पार्टिकुलर्स हो रहे हैं, साइज इंडिकेट करना, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट दी पैकिंग दी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए है, और सिग्नेचर जेडे हैगे मैन्युफैक्चरर दे होने चाहिए है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके ना सनस्क्रीन की लेबलिंग बारे दस्या होया कि स्टार्टिंग जेड़ा फ्रंट हैगा आ ओदी लेबलिंग उन्हें किद्दां मेंशन कीती है, ठीक है, ओदे साइड दे विच दस्या होया कि इनएक्टिव इंग्रेडिएंट केड़े है, केड़े किदा डायरेक्शन फॉर यूज, वार्निंग केड़ी-केड़ी हैगी, यूज कादे लई हुंदी है, एक्टिव इंग्रेडिएंट केड़े-केड़े प्रेजेंट हैगे आ, सो दीज ऑल शुड बी मेंशनड इन द फाइनल लेबल, ठीक है। द लास्ट टॉपिक इज द ऑफेंसेस एंड द पेनल्टीज। ऑफेंसेस ते पेनल्टीज, सब तो पहला इंपोर्ट ऑफ स्प्यूरियस कॉस्मेटिक, अगर किसी पर्सन ने स्प्यूरियस कॉस्मेटिक नु इंपोर्ट करवा लिया, ठीक है, और वो कॉस्मेटिक जेड़ा हैगा दैट इज हार्मफुल टू यूज, तो उस केस दे विच की होएगा 3 साल दी इंप्रिजनमेंट, ठीक है, विच मे एक्सटेंड 5 ईयर, 3 साल दी सजा जो 5 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, प्लस 5000 रुपीस। दूसरा इंपोर्ट ऑफ कॉस्मेटिक हुज इंपोर्ट इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 10, कोई भी कॉस्मेटिक उन्होंने इंपोर्ट कराया गया जो कि सैक्शन 10A ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ कहता ਸੀਗਾ कि इन्हें कॉस्मेटिक ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ that has been prohibited, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਪੈਨਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ, 5 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ, 5000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਆਫੈਂਸ, 2 ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 10000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक विच इज नॉट ऑफ स्टैंडर्ड और मिसब्रांडेड कॉस्मेटिक, कोई भी मिसब्रांडेड कॉस्मेटिक या फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जिहड़ा हैगा आ कॉस्मेटिक नहीं सीगा, सो ओदे वे अगेंस्ट भी ऑफेंस किया किसने तो 3 साल की सजा, 5 साल तक बढ़ा सकते हैं ते 5000 रुपए जुर्माना। कंक्लूजन की होएगा, जिन्ने भी कॉस्मेटिक्स है जिन्होंने मैन्युफैक्चर ते इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है, दैट मस्ट बी अंडर द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स देयर अंडर, रूल्स 1945 वाले विच देखने आ, और साडे कोल रेगुलेटरी प्रोविजन जिहड़ी हैगी आ 40 एक्ट दे विच डिटेल हैगी आ। इफ नॉट देन प्रोडक्ट विल बी बैंड और इफ इट सेल इन इंडियन मार्केट, ठीक है, अगर नहीं हुंदा सो वो सारे प्रोडक्ट नु बैन कर दिता जाएगा, प्रोडक्ट नु बैन कर दिता जाता अगर रेगुलेटरी प्रोविजन जिहड़ी हैगी आ तुसी फॉलो नहीं करदे, एंड इट विल बी बैंड इन द इंडियन मार्केट, ओदी जिहड़ी सेल हैगी आ इंडियन मार्केट दे विच बैन की जाएगी, ठीक है। सो दीज आर द रेफरेंसेस एंड थैंक यू। So are you there in the class? Yes, ma'am. Okay. Shika te Harpreet bhi aa gayi thi ma'am, half of the lecture. Good afternoon. Okay. जिहड़ा ये तुहाडा टॉपिक हैगा आ, ये तुहाडे फर्स्ट मॉड्यूल दा एक पार्ट, मतलब 2 पोर्शन दे विच तुहानू फर्स्ट मॉड्यूल दिता गया है, ठीक है। हाँ जी मैम। ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਇਸ मतलब कि पीपीटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਪੀਡੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਪੀਡੀਐਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ, ਚੈੱਕ ਯੂਰ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਲਾਈਡ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੋ ਯੂ ਮਸਟ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਮਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਕਲੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਏਰੀਆ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਏਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪੋਰਟੇਬਲ ਵਾਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਸਟਿਲਡ ਵਾਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਕਰਟਨਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਇੰਜਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਂਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਜਨਰਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਡਿਟੇਲ, ਔਰ ਅਗਰ ਪਲਾਂਟ ਔਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਟੇਲ ਆਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਾਲ ਮਿਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਲੈਣਾ, ਬਾਲ ਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਿੰਗ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो ये चीज़ां अगर तुहानू डिटेल आउंदी है तां तुसी इन्हां नू ब्रीफली 2-3 लाइनां दे विच इलैबोरेट अपने ठीक है। बाकी टॉपिक दे अकॉर्डिंगली सारा कुछ कवर किया है, बस ये है कि कुछ चीज़ां इहदे विच बहुत ज़्यादा डिटेल च नहीं होण हैगियां, ठीक है। अगर तुहानू कोई भी चीज़ च प्रॉब्लम आंदी है, तुहानू डिटेल नहीं
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ओके मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। बाय बाय।